नमस्कार दोस्तों। नमस्कार ट्रेडर्स। आज मैं बहुत एक सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो कि कुछ लोगों के एक माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए। वो ये है कि हमेशा सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न फ्रॉम, one will make losses, it is risky, there is a lot of chance of losing money. So my point to discuss here in this video is, why is the stock market not as risky as most of the people think? ये जो टाइटल है इसका वो यही है कि why is the stock market not as risky as most of the people think. अब इसके लिए कई पॉइंट्स हम डिटेल्स में जाएंगे ताकि आपके माइंड में ये एक फीलिंग आए कि स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट रिस्की इफ हैंडल्ड प्रॉपर्ली. So whenever stocks are mentioned as a favorable investment class, there invariably will be someone who will mention its tendency to be risky and volatile. So आप कोई भी फोरम में या कहीं पे भी बैठ के डिस्कस करेंगे अपने घर में या फ्रेंड्स के साथ कि आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स फॉर मेकिंग सम गुड रिटर्न्स, सो दे विल फर्स्ट लाफ एट यू और दे विल स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव दैट आप उस फील्ड में तो इतना रिस्क है, इतना वॉलेटाइल है, न्यूज़ है, आप डूब जाओगे. तो वाई डजंट what doesn't get mentioned is, if you know what you're doing, if you know what you're doing, it's probably the simplest way to create wealth. इस पॉइंट पे हमें हाईलाइट करना है. सो हर फील्ड का गुड पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो हम जरा गुड पॉइंट्स की तरफ डिस्कस कर सकते हैं. In the broad sense of the term, stock markets as indicative of their indices mean Sensex and Nifty tend to go up over the long term. सो अगर आप वैल्यूएशन देखें तो कहाँ पे निफ्टी चल रहा था और अभी कहाँ पे चल रहा है, सेंसेक्स कहाँ चल रहा था, अभी कहाँ चल रहा था. सो हर चीज़ में इन्फ्लेशन की भी वैल्यूएशन आती है, प्लस ग्रोथ की भी आती है. प्लस निफ्टी एंड सेंसेक्स इज ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट सर्विस कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज, एंड दे आर comprising of government and private bodies, all being run by professionals in their areas, so it is only going to go upwards. That is like property also normally is only going upwards. So stock markets will also go upwards, so we can get profit from it. Now patience is one of the key components of becoming wealthy in stock market. Patience, like it is said by the experts, that in the stock markets the money flows from the impatient to the patient. So somebody who is doing day trading or very small entry exits will tend to lose money. So there will be chances of losing money in that. So if someone is patient to manage his position, manage his targets, manage his stop loss, and also to average his positions, when the price is down, he can buy some more, invest some more, so that his price becomes better and he can exit it at a better rate. So this is all called patience, because you patient person will understand that there are swings in the market, so we should not get fearful about this downswings, etc. Instead, we should take it as an opportunity. Before investing in a stock, a good investor would do his research about a company balance sheet with assets, liabilities, revenues through the years, and evaluating how they handle their money. So, research is an important ingredient to making the chances of winning from the markets more for yourself. So, you have so many resources where you have uh,
details about the company. So there are statistical softwares which gives you about the बैलेंस शीट, द पी रेशियो, इवन इन सिंपल टर्म्स कि आपके वो कंपनी में क्या ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या टेक ओवर्स हो रही है, व्हाट आर दे अचीविंग, व्हाट आर दे नॉट अचीविंग. सो उसकी एक फील आपके पास होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग इज अबाउट बीइंग पेशेंट एंड सीकिंग कंसिस्टेंट रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म. सो यहाँ पे क्या है, एक लॉन्ग टर्म इज इम्पॉर्टेंट, एक है अबाउट बीइंग पेशेंट. ओके. सो इसमें क्या होता है कि आप nobody knows the future, so about a company or about nation. So in future there may be some mishappenings, but you have to be patient to uh, also see the good days. मतलब ज़्यादा दिन आपको अच्छे दिखते हैं, कम दिन बुरे दिखते हैं, लेकिन वो बुरे दिन को ही आदमी हाईलाइट करके उसमें नेगेटिव रिटर्न्स लेके निकल जाते हैं. सो उसको आप उल्टा मैनेज करिए, जैसे कि आप पेशेंटली वेट करिए. द फोकस इज ऑन. आप पेशेंटली वेट का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा मतलब लॉस में आपके प्लान्ड एक स्ट्रैटेजी है और वो नहीं चली आपके हिसाब से, तो आप उसी में बने रहेंगे फॉर इयर्स टू कम. वो भी एक अच्छी बात नहीं है. सो आपको एक एजाइल वे में, अलर्ट वे में, एंड विद इन अ प्लान्ड वे यू शुड मैनेज दैट entries, exits, etc. The focus is on buying stocks that will perform best over a period of years. तो आप उन स्टॉक्स को मत देखिए जिसमें बहुत मतलब इंट्राडे में बहुत अप डाउन हो रहा है और आप उसी में घुस जा रहे हो फॉर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. बट वो क्या है, दैट इज अ स्पेकुलेटिव मूव मे बी, और सम ऑपरेटर्स आर प्लेइंग अराउंड इन इट. बट आपको क्या है, आपको उन स्टॉक्स का जैसे रिसर्च करते हैं तो आपको निकल के आएंगे उसमें से कुछ 10 स्टॉक्स हैं तो उसमें से एक दो लगेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, तो उनका लिस्ट आप इंक्रीज करते रहिए, उनमें इन्वेस्ट करते रहिए जो लॉन्ग टर्म में अच्छा पोटेंशियल दिखा रहे हैं. तो आपकी पोर्टफोलियो एक अच्छी क्वालिटी की. द इन्वेस्टर वांट्स अ पोर्टफोलियो फुल ऑफ सच स्टॉक्स knowing that the deck is stacked in his favor of the long haul. तो ऐसे स्टॉक्स आप निकालिए. Ups and downs either in the stocks itself or in the overall market don't change the investor strategy because the real payoff is spread over many years. तो आप अप एंड डाउन में अपनी स्ट्रेटजी पे भी अप एंड डाउन ना हो, स्ट्रेटजी आपकी मेंटेन रहे कि मैंने जी, जैसे कि स्ट्रेटजी होते हैं, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी होता है, कोई फंडामेंटल बेस्ड होता है, कोई न्यूज़ बेस्ड होता है, कोई टीवी बेस्ड होता है. सो आप जो भी स्ट्रेटजी पे चल रहे हो आप उसको अच्छी तरह से रिसर्च करिए, उस पर स्टेबलाइज हो जाइए कि आपको वही फॉलो करना है, चाहे वो जैसा भी कंडीशंस होता रहे, और वो स्ट्रेटजी आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, आपके लिए सूटेबल होना चाहिए. Another reason why stocks are not as risky as most people assume is that it is inherently a positive sum game. पॉजिटिव सम गेम. तो स्टॉक मार्केट्स की जो पूरी एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड जैसे कि आपकी गेम है, वो पॉजिटिव सम गेम है. जैसे हम पहले डिस्कस किए थे कि वो सारी कंपनीज जो चल रही हैं इसके इनलिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, वो तो अपने ग्रोथ के लिए ही कर रहे हैं ना सारा कुछ. उनका इनहेरेंट एम तो वही है. तो इसलिए आपकी स्टॉक मार्केट भी ग्रोथ पैटर्न पे ही चलती है. This indicates that even if you don't know what you're doing, odds are that you will make money if you stay put for a sufficiently long period while investing in the right stock. तो एक तो पीरियड और एक स्टॉक का क्वालिटी, ये दो चीज़ की अगर कॉम्बिनेशन आपकी तालमेल बढ़िया रहे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा. By this, I don't mean you will never make a loss, just that the instances of a novice making money in stocks is not unheard. मतलब कि losses तो रहेंगे ही, but आपके स्मॉल रिसर्च एंड स्मॉल डिसिप्लिन के साथ आप इसमें कमाने के चांसेस हैं काफ़ी. Volatility is the nature of equity markets, but as your lens turns to a 10 year or above perspective, the volatility seems a bit sharp and losses tend to be capped. लेस शार्प. सो इसका मीनिंग ये है कि आप अगर बहुत फाइन स्मॉल टर्म में देख रहे हो हर चीज़,
तो आपको उसमें बहुत नॉइज़ होएगा, बहुत वॉलेटिलिटी होएगी, आपको बहुत लॉसेस के वो चांसेस हैं। बट आप उसको एक मीडियम मीडियम स्विंग बेस्ड स्ट्रेटजी बनाइए बढ़िया सा, और उस पे आपको ज़्यादा फंड की भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, इतना लगाइए 1 लाख 2 लाख, उसमें प्रॉफिट निकालिए, फिर उसको वापस ड्रॉ कर लीजिए, कंपाउंड करने के लिए वापस लगाइए, फिर प्रॉफिट बनाइए। तो ऐसे करके आपका लॉसेस कंट्रोल रहेगा। ओके, सो think of long-term duration for making better profits. Entry points are important and the timing of those are also in some sense crucial, but that is not a sure shot way of achieving success. Not a sure shot. इसका मतलब ये है कि एंट्री पॉइंट्स, देखिए इसमें क्या है कि एंट्री पॉइंट्स एक बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। आप किसी से भी बात करेंगे, कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, कोई इंडिकेटर होगा, कोई स्ट्रेटजी होगी, वो बोलेंगे कितनी एक्यूरेसी है इसकी, एंट्री पॉइंट कैसी है। तो एंट्री पॉइंट लोग सोचते हैं कि वो एक 99% या 90% के ऊपर होना चाहिए, तभी वो सक्सीड करेंगे, क्योंकि बोला जाता है ना कि 90% ऑफ पीपल ओनली लूज एंड 10% और 5% विन। सो पीपल आर ऑल्सो थिंकिंग कि वो जो लोग हैं उनके पास वो ऐसी जादू की छड़ी है या एंट्री पॉइंट्स लेने की टेक्निक है जो हार्डली फेल होता है, या 5 to 10% ही फेल होता है, 90% विन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंट्री पॉइंट्स एक बेसिकली आपके लेवल्स हैं जो आपको, जैसे बोलते हैं, सिंपल फंडामेंटल है, लोअर प्राइस पे खरीदिए और हायर पे बेचिए, तो ऑब्वियसली आप तभी प्रॉफिट कमाएंगे। सो एंट्री पॉइंट के लिए इवन अगर कोई हायर प्राइस पे भी ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो वेट कर रहा है उसके लिए 2 साल 3 साल या 1 महीने 2 महीने 3 महीने, बट मोर देन 1 डे 2 डे 3 डे, तो उसके लिए वो एंट्री पॉइंट में वो डबल करके भी निकल सकता है हायर पे भी लेके, और जो जिसने काफ़ी कम में लिया है वो थोड़े से पैसे लेके निकल जाएगा। तो ये तो एक रिलेटिव पॉइंट ऑफ पैरामीटर होता है एंट्री पॉइंट। इट्स नॉट श्योर शॉर्ट वे ऑफ अचीविंग सक्सेस। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो द सिंपलर एंड इन many a sense better way to approach investing is to take out time to do your own homework. So take out time to do your own homework, number one, and build knowledge about the asset class. So take out time to do your homework, build knowledge about what you are investing in, and then time your entries, time your exits, time your funds, manage your funds. And that is the name of the game. That is the essence of this stock market. If you look at the big picture and avoid getting rattled by daily ups and downs, you will be further along than most other investors. अब अगेन हम वही पॉइंट पे आ रहे हैं बार बार कि इसमें पेशेंस चाहिए है, टाइम के लिए टाइम देना पड़ता है। और ये डेली अप एंड डाउन में क्या है, ग्रीड एंड फियर में अगर आप फंस जाओगे उस साइकिल्स में, तो आप स्टॉक मार्केट्स को रिस्की ही मानेंगे। लेकिन रिस्क अगर आपको वो चीज़ से दूर हटना है तो आप डेली अप एंड डाउन से दूर हो जाइए और आप उसको प्रॉपरली मैनेज करिए। you so then you will start getting profits from the entire game. So we can say that we learned that the stock markets are risky, not researched and handled properly. Otherwise, provides good money making opportunity. So this is what we want to make our mindset.
So this is the traders, friends, everybody has made losses. We learned also from many losses. But if you change your mindset a little bit, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करें, तो नेगेटिविटी आपकी कम होती जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको कुछ रास्ते मिलेंगे. So thank you so much. I hope you enjoyed today's video, and we will be coming out with many more uh, concrete and helpful videos for all the traders. And keep watching. We appreciate your support given to us. Thank you so much.